بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائی گائز، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے خیریت سے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، میں ہوں آپ کا اپنا ذوالفقار نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپیوٹرز لائف۔ تو گائز، آج ہماری کلاس کچھ اسپیشل ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمارا یوٹیوب چینل کمپیوٹرز لائف، اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم بار بار آپس میں ملتے رہیں اور ہماری کلاس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ کو کچھ سیکھنے کے لیے کچھ ملے۔ تو گائز، آج ہم شروع کرنے والے ہیں۔ جو ہماری کلاس ہے وہ کلاس نمبر 8 ہے، 8 نمبر کلاس ہے۔ ہم ان پہ ڈسکس کریں گے۔ انسرٹ ہمارا مکمل ہوا اور آج جو ہماری کلاس ہے وہ ہے پیج لے آؤٹ کے اندر ہے۔ ان پر ہم انشاءاللہ کچھ ڈسکس کریں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کیسی لگی، اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر انسرٹ ہمارا مکمل ہوا اور آج جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی وہ پیج لے آؤٹ کے اندر کچھ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں۔ وہ واٹر مارک جو ہم نے پڑھا وہ آج کمپلیٹ کیا، اور تو اگلے چیپٹر کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے واٹر مارک سے آگے انشاءاللہ آگے ہماری کلاس میں اگلی کلاس کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جو پڑھنے والے ہیں مائکروسافٹ ورڈ کے اندر جو ہماری کلاس ہے، کلاس نمبر 8 ہے الحمدللہ، وہ ہم پڑھیں گے آج مائکروسافٹ ورڈ کے اندر پیج لے آؤٹ کے اندر۔ پیج لے آؤٹ کے اندر سب سے پہلا جو ہمارا آپشن ہے وہ ہے تھیمس۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ ہم یہاں کوئی بھی فارمولا لگاتے ہیں۔ یہ ہم نے فارمولا لگایا، مثال کے طور پہ یہ ہم نے لکھائی کی ایک ڈاکیومنٹ بنایا۔ اب آپ چاہتے ہیں ان کو کلر وغیرہ دینا چاہیں تو یہ دیکھو یہاں سے آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ اب شو نہیں ہوگا۔ یہ دیکھو یہ کیوں نہیں شو ہو رہا، لیکن یہ اس کا مقصد ہے کلر دینا، پھر بھی یہ شو کیوں نہیں ہو رہا وہ آپ کو اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ جو پیراگراف ہے اس کو ہیڈنگ دینی پڑے گی۔ ہوم میں جائیں گے، یہاں سے دیکھو، یہاں سے کوئی بھی ہیڈنگ دیتے ہیں۔ ہیڈنگ دینے کے بعد واپس ہم پیج لے آؤٹ کے اندر آئیں گے۔ اب دیکھو، اب ہم کلر وغیرہ دینا چاہیں تو یہ دیکھو یہاں سے دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھو اب کلر شو ہو رہے ہیں، پہلے کلر شو نہیں ہو رہے تھے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ہیڈنگ دینی پڑے گی۔ اس کا شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے ہیڈنگ دینی پڑے گی، اس کے بعد یہ کلر وغیرہ شو کرے گا۔ اور یہ یہاں سے ریسٹ تھیمس، یہ مطلب کہ آپ کو بھی کلر دیں، یہاں سے آپ یہ اس کو کلک کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا، کلر وغیرہ یہاں سے ختم ہو جائے گا پیراگراف سے۔ اور اس کے بعد یہ کلرز، یہ بھی کلر ہے، اس کے پیراگراف کے کلر ہے، یہ بھی تب شو ہوں گے جب ہم اس کو ہیڈنگ وغیرہ دیں گے۔ یہ یہاں سے مرضی مطابق آپ کلر لے سکتے ہیں، بہت سارے کلرز ہیں پیراگراف کے، آپ اپنے جو مرضی چاہے یہاں سے آپ دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد فونٹس ہیں۔ فونٹس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے آپ پیراگراف کے اسٹائل ہے، یہاں سے آپ مرضی مطابق پیراگراف کے اسٹائل وغیرہ یہاں سے آپ دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھو یہاں پیراگراف کے مختلف اسٹائل ہیں، جس پہ آپ کلک کریں گے وہ ہمارے پیراگراف سے وہ اسٹائل لگ جائیں گے۔ یہ دیکھو مختلف پیراگراف کے اسٹائل ہیں ورڈ کے، جو چاہے آپ یہاں سے رکھ سکتے ہیں۔ پیراگراف کے ڈیزائن ہے، اس کے اسٹائل وغیرہ یہاں سے آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایفیکٹس ہیں۔ ایفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ یہ دیکھو، یہ ابھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن یہاں سے ہم انسرٹ کے اندر جائیں گے، یہاں سے کوئی بھی شیپ ڈرا کرتے ہیں۔ یہ ہم نے شیپ ڈرا کیا اور یہ کلر دیا۔ اب یہ فارمیٹ کے اندر جائیں گے، یہ کلر جو ہے کلر نو فل کریں گے، جو شیپ کا کلر ہے نا وہ اس کو ختم کریں گے، صرف جو چودھری گریڈ لائن ہے اس کو باقی رہنے دیں گے، تب یہ شو ہوگا۔ اب دیکھو یہ گریڈ لائن مختلف اس کے ایفیکٹس ہیں، یہ دیکھو اس گریڈ لائن کی ڈیزائن ہے وغیرہ یہاں سے آپ دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھو، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ شیپ وغیرہ اس کی جو گریڈ لائن ہے اس کا کلر وغیرہ یہ اور اس کی ڈیزائن وغیرہ یہاں سے آپ دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھو کوئی بھی اپنی مرضی مطابق یہاں سے آپ دے سکتے ہیں۔
अच्छा, उसके बाद ये मर्जिन्स हैं। मर्जिन्स का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आप यहाँ से अपने पेज की साइज़ यहाँ से आप रख सकते हैं। पेज की साइज़ ये देखो, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पेज की साइज़ यहाँ से रख सकते हैं। ये आप छोटा चाहे छोटा करना चाहें और चाहे बड़ा करना चाहें, यहाँ से आप रख सकते हैं। ये देखो, अपने मर्ज़ी के मुताबिक आप पेज की साइज़ रखना चाहें तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी मुताबिक रख सकते हैं। ये देखो, उसके बाद कस्टम मार्जिन्स है। यहाँ से आप जितनी चाहे राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। अब नंबर वाइज यहाँ से आप रख सकते हैं। ये देखो, अब आप चाहते हैं पेज लेटा हुआ हमें नज़र आए तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो हमें पेज लेटा हुआ नज़र आएगा, और दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज बड़ा लंबा हमें नज़र आएगा। तो इसके ये मर्जिन्स का मतलब ये है कि पेज की साइज़ जो हमें प्रिंट निकालना है उसकी साइज़ उसे आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और ऑप्शन का मतलब ये है कि ये भी वही है, पेज की साइज़ है। पेज की साइज़ है, यहाँ से आप पेज लंबा करना चाहें या टेढ़ा, मतलब लेटा हुआ पेज हमें नज़र आए तो ये देखो यहाँ से आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से ये भी साइज़ है, पेज की साइज़ है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी मुताबिक पेज की साइज़ यहाँ से आप रख सकते हैं। ये देखो, ये पेज की साइज़ है। यहाँ से आप मर्ज़ी मुताबिक पेज की साइज़ यहाँ से रख सकते हैं। ये लंबा करना चाहें पेज या मर्ज़ी मुताबिक छोटा करना चाहें तो यहाँ से आप सेव कर, लंबा करना चाहें या छोटा करना चाहें यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखो, 2 पेज करना चाहें या यहाँ से आप कर सकते हैं। अमूमन जो पेज की साइज़ होती है वो लेटर साइज़, ये देखो, ये आम तरह साइज़ हमारी ये होती है, लेटर साइज़। उसके बाद कॉलम है। कॉलम मतलब ये कितने चाहे, अब 1 कॉलम चाहिए आपको, 2 कॉलम चाहिए, 3 4 5 अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये हम 3 कॉलम हमें चाहिए तो यहाँ से आप 3 कॉलम भी लगा सकते हैं। ये देखो, 3 कॉलम आ गए। अब ये आप चाहते हैं 3 से मज़ीद बढ़कर कॉलम रखना चाहें तो यहाँ से आप ये देखो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कॉलम लगा सकते हैं। ये देखो, यहाँ से आप 1 से ज़ायद भी 2 3 4 5 मतलब कितने भी चाहे आप यहाँ से कॉलम लगा सकते हैं और उसकी डिज़ाइन वगैरह यहाँ से लगा सकते हैं। कॉलम वगैरह जो हमें अखबारों में पढ़ते हैं जो वो कॉलम, वो यही चीज़ है। कॉलम वगैरह यहाँ से आप सेट कर सकते हैं अपने मर्ज़ी मुताबिक, 3 4 या उससे ज़ायद भी यहाँ से अपने एक पेज के अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद पेज ब्रेक है। आप पेज को ब्रेक देना चाहते हैं, आप चाहते हैं लिखाई कर के बाद में आप चाहते हैं यहाँ से मैं दूसरे पेज पे जाना चाहता हूँ तो पेज ब्रेक पे आप क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पेज पे चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ से हम दूसरे पेज पे चले जाना चाहते हैं तो ये देखो, अब इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से पेज क्लिक करेंगे तो ये देखो, ये हम दूसरे पेज पे चले गए। हमारा थोड़ा सा पैराग्राफ भी नीचे चला गया, दूसरे पेज पे चला गया है। ये देखो, जिस साइज़ पे और मतलब पेज की जिस साइज़ पे हम ये क्लिक करेंगे और ये कर्सर रखेंगे और जहाँ पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो वो पेज बीच से टूट जाएगा। और आप कॉलम तोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप कॉलम तोड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारा पैराग्राफ है, आप यहाँ लिखाई कर रहे हैं और आप चाहते हैं मैं अब दूसरे कॉलम में जाना चाहता हूँ तो इसके अंदर यहाँ से पेज ब्रेक के अंदर जाएंगे, यहाँ कॉलम के अंदर जाएंगे तो ये देखो हम दूसरे कॉलम में पहुँच गए। तो इसका मतलब यही होता है कि कॉलम के किस साइज़ में भी आप जाना चाहें, किसी भी कॉलम में जाना चाहें तो जा सकते हैं। यहाँ से पेज ब्रेक, नेक्स्ट पेज मतलब दूसरे पेज में जाना चाहें तो यहाँ से आप एक से दूसरे पेज में जाएंगे। ये देखो हम दूसरे पेज में पहुँच चुके हैं। मतलब ये सारी पेज की साइज़ है और पेज की सेटिंग है। यहाँ से आप यहाँ से आप पेज नंबर 2 में बैठे हैं और आप चाहते हैं डायरेक्ट मैं दूसरे चौथे नंबर पेज में जाऊं और तो यहाँ से आप पेज नंबर 4 में जाएंगे तो यहाँ से आप
पेज नंबर 4 में पहुंच जाएंगे। ये देखो हम पेज नंबर 4 में पहुंच चुके हैं। ये देखो यहाँ से हमें बता रहा है कि आप पेज नंबर 4 में बैठे हो। टोटल पेज 5 हैं, लेकिन आप पेज नंबर 4 में बैठे हो अभी। लेकिन अब ये देखो आपको यकीन नहीं आ रहा, तो यहाँ देखो हम पेज नंबर 1 में आते हैं। तो यहाँ देखो, ये देखो आप अब कह रहा है कि आप पेज नंबर 1 में बैठे हो। अब ये देखो अब कह रहा है कि आप पेज नंबर 2 में बैठे हो। टोटल पेज हमारे 5 हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप पेज की साइज़ कर सकते हैं, और मुख्तलिफ साइज़ हैं। पेज ब्रेक भी करना चाहें तो यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। ओल्ड पेज मतलब वापस 1 नंबर पेज में जाना चाहें तो यहाँ से आप जा सकते हैं। ये पेज की साइज़ है, पेज की डिज़ाइन है, पेज के यहाँ से आप अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद लाइन नंबर है, और लाइन नंबर, अच्छा लाइन नंबर आप मिसाल के तौर पे यहाँ से आप ये क्लिक करेंगे और आप चाहते हैं हर लाइन को नंबर आ जाए, तो यहाँ से आप कस्टम पे क्लिक करेंगे तो ये देखो हर लाइन के लिए अलग अलग नंबर आ गया है। तरतीबवार 1 2 3 4 5, मतलब जितने भी पैराग्राफ की लाइन्स होगी तो वहाँ हर एक लाइन का नंबर अलग आ जाएगा। यहाँ से आप रेस्ट पेज करेंगे तो भी ये लाइन पेज नंबर है, मतलब इसका मतलब लाइन नंबर है, मतलब आपका लाइन नंबर यहाँ से आप दे सकते हैं। कोई भी पैराग्राफ बनाते हैं और उसको लाइन नंबर यहाँ से आप दे सकते हैं। उसके बाद नीचे ये भी वही साइज़ है, अपने पैराग्राफ को लाइन नंबर दे सकते हैं। यहाँ से ये देखो ख़त्म हो गया, दोबारा लाना चाहें तो इसको ख़त्म करेंगे, और ये ट्रिक मार्क जो इसको ख़त्म करेंगे। ये देखो अब सिर्फ ये जो पैराग्राफ बीच से टूटा हुआ नज़र आ रहा है, सिर्फ ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको नंबर आ गया। अब आप चाहते हैं कि मैं सारे पैराग्राफ को नंबर देना ये क्लिक हटाएंगे तब ये देखो नंबर शो होंगे। अगर आप ये क्लिक नहीं हटाएंगे तो पैराग्राफ को नंबर नहीं आएंगे, मतलब लाइन नंबर जो आप देना चाहते हैं तो नहीं आएंगे। यहाँ से आप मर्ज़ी मुताबिक दे सकते हैं, और पेज की साइज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हैप्पीनेशन, ये भी वही मकसद है। आप चाहते हैं कोई भी मिसाल के तौर पे लाइन के अंदर हमारा वर्ड जो यहाँ से आया है, और उस वर्ड का कुछ हिस्सा रहता है वो नीचे वाली लाइन में आ गया है, और आप चाहते हैं हमें कैसे पता चले कि हमारा वो वर्ड जो है वो टूट चुका है और आधा हिस्सा नीचे वाली लाइन में आ गया है। तो यहाँ से आप मिसाल के तौर पे हाइपीनेशन के अंदर जाएंगे, यहाँ से मैनुअल के अंदर जाएंगे, और ये देखो ये हैप्पीनेशन कंप्लीट है, मतलब यहाँ से कोई भी वर्ड टूटा हुआ नहीं है। और आप यहाँ पे जाएंगे, अब हैप्पीनेशन के अंदर क्लिक, कोई भी वर्ड टूटा हुआ है, मिसाल के तौर पे ये देखो ये वर्ड टूटा हुआ है। अब यहाँ पे आप क्लिक रखेंगे, और अब ये देखो अब ये कह रहा है कि आपका आधा वर्ड ये है और आधा वर्ड नीचे वाली लाइन में चला गया है। पहले हमें नहीं बता रहा था क्योंकि वो वर्ड मुकम्मल कंप्लीट था। अब ये देखो ये छोटा सा डॉट आ गया है, कि इसका मतलब ये है कि आपका आधा वर्ड नीचे वाली लाइन में चला गया है। वो यहाँ से आपको दिखा रहा है कि वो जो वर्ड टूटा हुआ है वो ये है, और कंप्लीट वर्ड ये है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको पैराग्राफ का छोटा भी कोई भी लफ्ज़ हो, लेकिन वो आपस के अंदर टूट जाता है, वो यहाँ से आपको पता चलता है कि इसका आधा हिस्सा नीचे चला गया है, नीचे वाली लाइन में चला गया है। अच्छा, उसके बाद वाटर मार्क है। वाटर मार्क ये सादी आसान चीज़ है, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वाटर मार्क ये है कि आप चाहते हैं ये जो हमें पैराग्राफ बनाया है, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है, और आप चाहते हैं बैक साइड पे हमारा नाम रखना चाहें या कोई भी पिक्चर वगैरह रखना चाहें तो यहाँ से आप रख सकते हैं पैराग्राफ के अंदर। ये देखो यहाँ से आप अपने मर्ज़ी मुताबिक नाम लिख सकते हैं। ये हम अपना नाम लिखते हैं, मिसाल के तौर पे
پیراگراف کے اندر ہم یہاں سے اپنا نام لکھتے ہیں. یہ دیکھو یہاں سے میں اپنا نام لکھتا ہوں. یہ میں نے اپنا نام لکھا ہے اور آپ چاہتے ہیں پیراگراف کے پیج کے بیک سائڈ پہ آ جائے تو یہ دیکھو میرا نام بیک سائڈ پہ آ گیا ہے. اور یہ نظر نہیں آ رہا آپ کا، آپ وہاں سے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں. پیراگراف وہ اس کا کلر بھی یہاں سے آپ لگا سکتے ہیں. اب اوکے کریں گے، اپلائی کریں گے تو یہ دیکھو ہمارا کلر بھی چینج ہو گیا اور بیک سائڈ پہ نام بھی ہمارا آ گیا. اور آپ چاہتے ہیں بیک سائڈ پہ ہم کوئی بھی پکچر وغیرہ دینا چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں. یہاں سے آپ پکچر پہ کلک کریں گے، سلیکٹ پکچر پہ کلک کریں گے اور یہاں سے کوئی بھی پکچر اٹھائیں گے. یہ میں پکچر لگانا چاہتا ہوں بیک سائڈ پہ اور یہاں سے انسرٹ کروں گا، یہاں سے میں اپلائی کروں گا تو یہ دیکھو بیک سائڈ پہ ہماری پکچر ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن اس کی ہم ڈیزائن وغیرہ وہ بھی یہاں سے سیٹ کرتے ہیں، جتنی ہمیں چاہے تیز نظر آئے یا ہائڈ نظر آئے، مطلب تھوڑی سی نظر آئے تو یہاں سے آپ اس کی سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیچے واٹر مارک کے اندر یہ یہاں سے آپ ریموو کرنا چاہیں تو ریموو ہو گیا. یہ دیکھو اب واٹر مارک ہمارا ریموو ہو گیا. یہاں سے اب کرتے ہیں بریک. اور رہی زندگی تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں رہے ہوئے آپشن انشاءاللہ پڑھیں گے. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم گائز. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. پھر بھی کوئی بھی کوسچن ہے کسی بھائی کا تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے. یہ رہی زندگی تو پھر ملیں گے. آپ کا اپنا ذوالفقار بھائی. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.